Assalamu alaikum, Pakistan. So welcome for the third show in a row in a day. So आज की जो अभी की जो हमारी मेहमान शख्सियत हैं उनके बारे में मैं इतना सा आपको बताता चलूं कि माशाल्लाह he is a very highly professional HSE professional, working at a corporate level. और बहुत बड़े एक ग्रुप में, बहुत बड़ी एक कंपनी में एक अच्छी पोजीशन पे माशाल्लाह वो काम कर रहे हैं। तो उनके जर्नी के बारे में किस तरह वो क्या उनकी सॉलिड सक्सेस स्टोरी है जो हम सबको इंस्पायर कर सकती है इंशाल्लाह। स्पेशली जो हमारे जॉब सीकर्स हैं या जो सेफ्टी प्रोफेशनल्स हैं जो अक्रॉस द ग्लोब काम कर रहे हैं, उनको भी कुछ ना कुछ सीखने का ज़रूर मौका मिलेगा इंशाल्लाह। So I hope he'll join us within few moments or minutes inshallah. So in the meantime, बेस्ट इंटरनेशनल अपनी ऑडियंस का, हर उस पाकिस्तानी का तहे दिल से मशकूर है जो माशाल्लाह जिनकी हौसला अफजाई की वजह से हम जो है वो लाइव कुछ ना कुछ एक अच्छे नॉलेज के साथ या जो भी इंस्पायरिंग स्टोरीज हैं और जो ट्रू प्राइड ऑफ पाकिस्तानीज हैं उनको हम फ्रंट पे लेके आ रहे हैं माशाल्लाह। और कोशिश यही कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम ज़रूर कंट्रीब्यूट करें। और ये सब कुछ अल्लाह की रहमत के बाद आप लोगों की मोहब्बत है, मोटिवेशन है, जिसकी वजह से हमें एनर्जी मिलती है। और आई नेवर थॉट कि बेस्ट इंटरनेशनल इस तरह भी लोगों को सपोर्ट कर सकती है। तो you gave us energy, mashallah, and thank you very much for every Pakistani who is supporting Best International for this particular cause. और पर्पस हमारा विजन यही है कि हम किस तरह वी कैन गिव बैक टू आवर सोसाइटी, के कहीं ना कहीं हम रोल प्ले करें। कि अगर हम देखें, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि अगर हम पूरे मीडिया को, अगर मैं जो फ्लड ऑफ इंफॉर्मेशन है इंटरनेट पे, हम सब अब एक समंदर है नॉलेज का और इंफॉर्मेशन का इंटरनेट की दुनिया पे। तो अब हमें बड़ा चूजी और सिलेक्टिव होना पड़ेगा कि हम कौन से बंदों को सुने, कौन से एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स को सुने कि जिनसे हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिले, जो हमारी अपनी लाइफ में भी अप्लाई करके हमें कोई बेनिफिट भी मिले और पाकिस्तान के लिए भी अच्छा हो। तो आइए इंशाल्लाह मिलके लेट्स वार्मली वेलकम टू आवर guest inshallah, and we'll introduce him in a very short moment. Assalamu alaikum Ali bhai. वालेकुम सलाम कैसे हैं आप इश्तियाक भाई। Alhamdulillah, Alhamdulillah. So, audience, without wasting your time, I'm not interrupting. So, let's hear everything from Mr. Ali, mashallah, because he's a very अल्लाह ब्लेस यू। inspiring and successful professional. जी, over to अल्लाह you, ब्लेस। Ali bhai. Please बताइए कि कैसे हैं आप, माशाल्लाह, और क्या अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का करम है, किस मैं बिल्कुल तरह ठीक हूँ, खैरियत से किस हूँ, तरह अल्लाह का मोटिवेट शुक्र है। करेंगे हमारी पाकिस्तानी ऑडियंस को। थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रीशियस टाइम टू बी लाइव विद अस। थैंक यू वेरी मोस्ट मच। मोस्ट वेलकम, And इट इज़ humble नाइस टाइम टू thanks, बी विद यू आल्सो because I know you इश्तियाक are भाई। so much busy, mashallah. So इट्स still thank you very much. it's really nice to be with you in this session, and I feel really grateful that you have given me respect and pleasure just to talk to the people which are really required their career to be boosted, inshallah. Inshallah. And Allah can. by together working there, we can do our best, so we can motivate all our people accordingly. Inshallah. Now the concern is here, the team which has joined to us, and they want to have something for their career life, right? So Yeah, first of all, the important thing which we consider in a life, we are already working in an area which is full of competition, first of all. absolutely. And second thing, all the guys which are planning to become professional, they need to check their tools. The thing, uh, their tools must be full empowered so they can utilize themselves in the job, in the professional life, and hunting a careers. Nowadays, nowadays, when people are applying for the job, which I have observed, that every day we are getting calls and interviews and the requests from the people which they are asking and requesting for the job parameters. So every time people are telling they are having few year of experience, and please give them chance, they will prove themselves. This kind of things, I believe, while working in multinational companies,
companies are not considering. They consider the guy which they can come and they can give immediate feedback to their employees, which they can give input to their team, which they can be beneficial in the project, right? uh, Absolutely. Yeah. Nowadays, you know that Saudi Aramco major incident reporting system has been developed a lot, and they are acquiring each and every employee who is covering and who is participating. They're familiar a bit about it, while we are having our team members like our Pakistani friends, okay, and other nationalities including Indian and Sri Lankans and Filipinos. All we are all in working in same parameters. We are working for the company, but Yeah. in short, in other hand, we are seeking financial support while we're working and being employees. Okay, so when people consider, they only consider they want to be on job by hook and crook. They want the employees, they simply get the job. Either way, they use source here there, but while having a lot dealing with the client, including whether it is going to be Saudi Aramco or it's going to be Saudi Sabiq or Royal Commission areas and all the considering. Well, my most area of saying is Saudi Arabia, because you know we are in Saudi Arabia since many years, and almost we have given our decades of life we have given to them. So by knowing Absolutely. this all, that all the newcomers, which because no doubt safety, health, environment is it has a lot potential. You are already safety professional, you are senior trainers, and you are a leader in this all sense. You know that you have also faced seminars, you have faced the people, you have gone through all these subjective things. So what I consider, that every employee who want to be on the job, who want in this oil and gas field, either oil and gas or services or hospitality or any field related to it, first they need to consider that the presentable thing which they are presenting is a basic, their resumes, their CV, their credential, whatever you can say, you can give them Yeah. name, right? So these credentials or these CVs, at least it should be acceptable or saleable. What we are getting, Absolutely. we are getting money, or we are getting services in reward what we submit to them, either our You certification absolutely. or Absolutely. our certification or our qualification or our experience, or our knowledge which we are having in our mind, right? That all we Absolutely. are selling to them. They are getting services from our side, and these services are enhancing ourselves just to give support to the project in Ali either भाई way it यहाँ is. पे मैं आपको I would really want to appreciate the efforts MashaAllah at corporate level you are doing in CPP, especially for Saudi Aramco projects. Even I Yeah, noted the first fire, kind of a drill actually, emergency response drill for COVID-19. Actually, you are the I would say the the first first person. safety leader actually for Yeah, this right. initiative. And the second thing is, I noted, you are managing maybe more than 1,000 plus employees on different projects, Yeah, and that we. is the key factor where you are getting more respect, mashallah, because you know how to manage, all your audience on different projects. I mean, to Thank you very avoid much. Thank LTIs, you. and I truly appreciate, mashallah. तो अली भाई थोड़ा सा अपना जर्नी हम पाकिस्तानियों को बताएं कि किस तरह वो किस रोड मैप पे आए कि वो आज जो मैंने वैल्यूड किया है कि देखें नॉलेज इंफॉर्मेशन स्किल्स ऑल आर अचीवेबल अटेनेबल बट द पॉइंट इज नाउ बिजनेस कम्युनिटी इज लुकिंग फॉर द एग्जीक्यूटर्स कि जो Yeah, ऑपरेशनल एक्सेलेंस में है कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन करें बिकॉज you're नॉलेज यू right. कैन गेट आपके पास नहीं है मैं दे दूंगा मेरे पास नहीं है आप दे देंगे बट द Sure, sure. पॉइंट इज It's हु कैन sharing. अप्लाई हु कैन एग्जैक्टली It's sharing. तो It's व्हाट sharing यू गोना criteria. गाइड एग्जैक्टली तो क्या गाइड W- करेंगे हम पाकिस्तानियों को किस तरह Well, प्रोडक्टिव बन जाए पाकिस्तान, जो हमारे पाकिस्तानी टीम मेंबर्स हैं और जो चाहते हैं कि वो नॉट ओनली सऊदी अरेबिया, गल्फ या इधर आके अगर अपने आप को सेटल करना चाहते हैं, सो इवन पूरी दुनिया में अली भाई बहुत पूरी दुनिया अपॉर्चुनिटीज में हैं सेफ्टी वर्क है पूरी दुनिया में इवन यूरोप में बहुत अच्छा क्राइटेरिया है।
इंग्लिश कंट्रीज में बहुत अच्छा क्राइटेरिया है, जिसमें यूएसए भी है, कनाडा भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, ठीक है। इवन के जो यूरोपियन है, जो बेल्जियम, लाइक नीदरलैंड और बेल्जियम, ये वो सारी चीजें हैं जो मैं खुद से फेस आउट हुआ हूँ, जिनके साथ मैंने काम किया हुआ। दे आर गिविंग सो रिस्पेक्ट, दे आर गिविंग सो रिस्पेक्ट टू सेफ्टी। सही है। आजकल तो हमारी पब्लिक वो तुर्किश ड्रामे बड़े देख रही है, so even the Turkish people, they are like Turkish companies over here, they are giving a lot respect and to safety. They have big blunder budget for safety. ओके, एंड नो डाउट जो सेफ्टी लीडर्स हैं या सेफ्टी टीम मेंबर्स हैं, इवन के वो इधर इधर हेल्पर भी है या फिर उससे सीनियर लेवल का बंदा है या इस तरह से जो भी है, दे आर गिविंग अ लॉट टाइम एंड दे आर पेइंग अ लॉट आल्सो, ठीक है। लेकिन रिवार्ड में उन्हें यही चाहिए, जो हमारी टीम मेंबर्स है, हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, कि बिहेवियर जो है ना वो बहुत काउंट होता है। आजकल अरामको वाले भी हैं या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है या इंटरनेशनल एफिलिएशन जितनी भी हैं, वो बिहेवियर के ऊपर बहुत काम कर रही हैं, ठीक है, बिहेवियर के ऊपर काम कर रही हैं। हमारे जितने भी सेफ्टी प्रोफेशनल है, उनको अपने बिहेवियर में प्रोफेशनलिज्म लेके आने की जरूरत है, ठीक है। इसके लिए स्किल्स डेवलप करने की जरूरत है। आप अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि एक बंदा जो है एक बड़े से इंस्टीट्यूट में ही जाए। ही कैन गेट दिस प्रोफेशनलिज्म फ्रॉम एनीवेयर, बुक्स पढ़ के ले सकता है, यूट्यूब, फ्री में यूट्यूब है, हर बंदे के पास इंटरनेट का दौर है, आजकल इंटरनेट है, ठीक है। इस तरह से वो करके अपने नॉलेज को अक्वायर कर सकता है और अपनी इन चीजों को अच्छी तरह से डेवलप कर सकता है। ये तो वो चीजें कि जो अक्वायर कर सकते हैं। दूसरा, जो भी हमारे पाकिस्तान में जो कोर्सेज प्रोवाइडर्स हैं, कोर्सेज में नाम नहीं लेता किसी का, यू नो मोर देन माई सेल्फ, क्योंकि आप डायरेक्टली ट्रेनिंग से रिलेटेड हैं, मैं कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस से रिलेटेड हूँ। तो वो कुछ हमारी पब्लिक को ना यार, दे आर शेयरिंग द नॉलेज, मोस्टली दे आर पुटिंग सम फेकिज्म इनसाइड इट, ठीक है। थोड़ा सा लोगों को धोखा दिया जाता है, ठीक है, उनसे पैसे पैसे लेने के लिए, या फिर एक ड्रीमी उन्हें गलत बिहेवियर दिखा के ड्रीम, जस्ट ग्रीन चीजों गार्डन, हाँ जी, सब्ज बाग दिखाए जाते हैं, ठीक है, आप ये कर लो, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, और उनके पीछे जो लोग बैठे हैं, एनी हाउ वी नो अ लॉट ऑफ देम, लेकिन कुछ उनमें अच्छा करने वाले भी हैं। लेकिन जो ऐसे करते हैं, जो भी डेलीगेट्स हैं या कैंडिडेट्स हैं, वो अपना नॉलेज एक्वायर करना चाहते हैं, ट्रेनिंग्स और कंसल्टेंसी अपनी जो बढ़ाने चाहते हैं, जो अपना, उन्हें सॉरी चाहिए अली कि भाई, किसी, आपको मैं यहाँ पे सॉरी फॉर इंटरप्शन, यहाँ पे मैं एक एडिशन करता चलूँ कि श्योर श्योर, क्योंकि अब बात इस तरह की निकली है कि बेस्ट इंटरनेशनल वाज लुकिंग फॉर समवन एज अ जॉइंट वेंचर और अ काइंड ऑफ एसोसिएट इन पाकिस्तान एंड माशाल्लाह, हम लोग सस्टेनेबल बिजनेस सोल्यूशन, जो दाऊद साहब आप जानते होंगे उनको, जी जी एंड जी जी, बेस्ट SBS, इंटरनेशनल और एसबीएस का एग्रीमेंट तब तक साइन नहीं हुआ था जब तक उन्होंने बेस्ट इंटरनेशनल की अप्रूवल निबोस से नहीं ले ली थी कि दिस इज माशाल्लाह, हाउ यू हैव टू बी प्रोफेशनल एक्चुअली, कि आप राइट, चाहे आप आपस में भी एग्रीमेंट कर रहे हैं, बी ट्रांसपेरेंट एंड ऑनेस्ट एंड गो विद निबोश एंड टेल देम दिस इज ट्रांसपेरेंसी, how बिल्कुल you are बिल्कुल, growing to grow as a team actually, so there is no harm to do it. तो ये जो आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया है कि वी हैव टू बी एथिकल, वी हैव टू बी ऑनेस्ट, अगर हम वाकई में चाहते हैं कि पाकिस्तान का इमेज हर लेवल पे पॉजिटिव रहे, हर कंट्री में, पूरी दुनिया में इवन, तो वी रियली नीड टू बिल्कुल बी एथिकल ऑन द वे। अली भाई बिल्कुल, सॉरी, एक आपने बड़ा इसमें अहम पॉइंट जिक्र कर दिया, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव चीजें ऐसी हमारी ऑडियंस को मिलें। आपने ना बजट का वर्ड यूज किया, बिकॉज मैनी जी जी। ब्रांड्स आई नोटेड दे हैव ओपन बजट फॉर सेफ्टी, लेकिन आप किस तरह कन्विंस करते हैं टॉप मैनेजमेंट को, हाउ यू गेट अप्रूवल फॉर योर सेफ्टी बजट और अ काइंड ऑफ HSE बजट, लाइक 2021 is coming, so it's a huge subject. I hope you got the point कि how you convince them actually. इस तरह से है कि इश्तियाक भाई, लाइफ मैटर्स, सही है, Like, लाइफ मैटर्स, देयर इज नो रिप्लेसमेंट फॉर ह्यूमन लाइफ, absolutely, सिंपल, वेरी सिंपल everything थिंग is कि returnable, right? everything One to one. can be retrieved, right? The project can be achieved by delayed tactics. The deliverables can be received, but if the life has gone once, it cannot be received, cannot Absolutely. be retrieved by any way. The one who has gone, it's gone forever.
right? So it's clearly definable in the policies and your management system that which sort of activities you are having, your job activities, and what how you analyze about the level of risk, right? Any activity Right. which we have, we perform risk assessment for about that, we perform hazard studies about it, and then we Yeah. realize which sort of risk we are standing. If we are standing in a minimum risk, and the job and these all stuff can be done in a minimum level, no doubt it's right of company to save money. But if people are standing on a risk level where we can have a blink of eye and everything can be gone, like in last week, might be you came to know one horrible accident happened within premises area, and it's be gone. So that's why company itself, they get convinced, and it happens somehow better way. Ali bhai, thank you very much for all your insights, mashallah, and it's a very productive discussion is going on. So we have one question from Mr. Sarmad Hussain. You know, he's a very noble safety professional, mashallah. I know him personally even. Mashallah. So he Mashallah. asks, you know, what you can suggest, what should be reviewed next to get in GCC region actually, or again even, what you can suggest, what should be reviewed next to get in GCC again, you know. So what we can recommend to a Pakistani audience, should they come to GCC right at this stage, or they should wait for a few months, or how are you going to predict this market, you know, because that's a very important question, Sarmit. Thank you very much, dear. uh, eh, so there are multi-million projects has been launched already by government. Multi-million, you can say billion projects has been launched already, and there are forthcoming project in 2021, where I don't think so that Saudi Arabia will be in that capacity to reach to get or collect the manpower, because a lot manpower has gone back. Okay, and Absolutely. it's gonna be very difficult in future just to attain and retain the employees which has gone already. A number of mega projects has been launched, it is already there, and I can share you afterward if you want to, all the project and who are the nominees and the manpower criteria. For example, a single project which is going to start just beside some Sheba area, um, more than 20,000 employees they needed. So where the 20,000 will come? No doubt Even their take an Saudization. example of Neom City, even anyway. Neom Neom City City is a also there. huge It's a project. future. Neom It's a cities are future. future. Yumbo cities are future. Okay, Jubail market is going to boost again, and again it's going to boost there. If you travel toward Khorsani area, most of people they know about it. If you Yeah, travel, exactly. You're absolutely. they are going to start again another industrial city. Okay, so this all things where they will fill it up. Of course, they can fill it up with their Saudis employees, their Saudi professionals, but they cannot be all of them which a foreigner can do, like जो हमारे पाकिस्तानी कर सकते हैं या दूसरे नेशनल हैं, वो उन्हें ज़रूरत रहेगी। इस ज़रूरत को कोई भी अवॉइड नहीं कर सकता ड्यू टू अभी सर्टन जैसे वायरस इश्यूज चल रहे हैं, और इसमें इन्फेक्शन जो भी इन्फेक्शन के चल रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग एंड डिस्कसिंग ऑन इट, इसलिए मैं उस पर भी बात नहीं करता। लेकिन जो मार्केट अभी चेंज होने जा रही है, उसमें दोबारा ये सारा का सारा रिटर्न बैक होगा, और इसमें प्रोफेशनल जो हैं दे विल बी वेरी वेलकम्ड, ऑल ऑफ देम, नॉट ओनली पाकिस्तानीज, सारी की सारी नेशनैलिटीज हैं, दे विल बी वेलकम्ड अगेन। Even Ali bhai, sorry for interruption. Even as per my feasibility analysis or kind of a market trend analysis and all, even they need double expatriates, you know, double Yes, actually, they need, because they need, there is no they option, have there is no a lot of initiative for the projects, you know, especially in the border areas, you know, the remote areas. They remote started a areas, lot we can of say. multi-million dollars projects. There are numerous projects has been signed by Saudi Aramco, and because we are not representative of Aramco jobs, that's why we cannot talk to the talk on subjectives to Exactly, absolutely, typical pinpoint. We cannot talk in general, we are exactly, discussing, absolutely, and absolutely. it has already been known by us that several of companies they obtain mega projects, and of course how they fulfill their values. Like we know Yeah. already, the Jubail area has been vanished. People has gone, number of people has gone from the from eastern region,
and southern region, many people has been gone, which was really professionals, and other countries, they are also welcoming them. So there is no risk of job. I don't think Yeah, so. I have given enough life to Gulf and Saudi Arabia. There is no risk of job. If you are a एब्सोल्युटली। professional, इवन if you are a इवन professional, अली भाई, you have a आप tool. कितने लोगों को हायर कर रहे हैं डे टू डे? आप अक्सर पब्लिश कर रहे होते हैं कि यू नीड मोर एम्प्लॉइज एंड यू नीड And I मोर don't सेफ्टी get all. ऑफिसर्स, I don't get all. WPIs, एंड इवन यू डोंट गेट Exactly. एक्चुअली। आई डोंट गेट ऑल। यकीन करिए कि जब मैंने सबसे पहली बात आपसे बताई थी जब हमने शुरू किया डिस्कशन, कि जब हम किसी को कहते हैं ना कि यार मुझे ये बंदा चाहिए, ठीक है, तो हमें बहुत सारे रेफरेंस मिलते हैं कि यार ये बंदा हायर कर लो, ये बंदे को हायर कर लो। जबकि जबकि एक सिंपल सी बात है कि इफ आई एम लुकिंग फॉर फूड, फॉर एग्जांपल अगर मुझे खाने में फॉर एग्जांपल मुझे एक दाल रोटी खानी है, तो मुझे कोई ऑफर कर रहा है कि यार तुम चावल खा लो, आई शुड नॉट गो फॉर इट। तो यही होता है कि जब हम जॉब पोस्ट करते हैं, तो उसमें एक स्पेसिफिक थिंग लिखी होती है कि ये चीजें हमें चाहिए, ये बंदा आए और वेलकम, ठीक है, ये बंदा वेलकम है। एब्सोल्युटली। इसी चीज को जो हंटर्स हैं, जॉब हंटर हैं, जॉब सीकर्स हैं, उनको चाहिए कि उस हिसाब से लाइन अप हो। जिस कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हैं, एक सादी सी एग्जांपल है, आई एम वर्किंग चाइना पेट्रोलियम कंपनी, इस मल्टीनेशनल कंपनी, ठीक है। एग्जैक्टली। हमारी कंपनी के 22,000 एम्प्लॉइज हैं, ठीक है, चाइना सीपीपी के 22,000 एम्प्लॉइज हैं, और हमारे लीडर्स एक सेटअप है उन सबका। तो जब आप किसी कंपनी में अप्लाई कर रहे होते हैं, मैं पर्सनली लोगों के रिज्यूमे देखे हैं, और देख के मुझे सिर्फ एक हंसी आती है, और मैं कुछ नहीं कह सकता कि आप किसी कंपनी में अगर अप्लाई कर रहे हैं, आपको पता है कि मैं एबीसी कंपनी में जा रहा हूँ, आप एबीसी कंपनी को गूगल करिए, हर बंदे के पास मोबाइल है आज के दौर में, उसको गूगल करिए, उसमें देखिए कि उनके प्रोजेक्ट्स क्या हैं, ठीक है, उनके प्रोजेक्ट्स क्या हैं, उनका उनका वर्कआउट क्या है, ठीक है, उन्हें किस तरह की मैन पावर चाहिए, आप उसमें कैसे फिट हो सकते हैं, या आपको क्या किस चीज की जरूरत है, ये चीज जो है ये बहुत इन्हांस कर सकती है। उस हिसाब से अपनी सीवी को एडिट करें, ठीक है। जो भी है, सीवी एक ऐसी चीज है कि अगर आपने किसी से डिस्कशन की है, एक अच्छा मुकालमा किया है, जो आपके लेवल को, आपकी कॉम्पिटेंसी को, आपकी स्किन को एनहांस कर सकता है, अपनी सीवी में लिख दीजिए। कंप्यूटर है, कंप्यूटर नहीं है, मोबाइल है, मोबाइल में वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट हर चीज होता है, उसी को इन्हांस कीजिए, उसको इन्हांस करके डेट के साथ बदलिए और अपनी गूगल ड्राइव में सेव कर लीजिए। अगर आपके पास एंड्रॉयड है तो गूगल ड्राइव में सेव कर लीजिए। कोई भी आपको अगर आप किसी भी पूछता है, उसमें छोटा सा इंट्रोडक्शन लेटर लगाइए कि सर मेरा नाम अली है, मैं सेफ्टी प्रोफेशनल हूँ, मैंने यहाँ काम किया हुआ है, ये मेरे प्रोजेक्ट अचीव किए हुए हैं, ये मैंने रिस्क असेसमेंट, ये रिस्क मैनेज किए हुए हैं, इतनी मैन पावर मैंने डील की हुई है, मैंने कोई जितने भी प्रोजेक्ट किए इसमें लॉस्ट टाइम इंजरी कोई नहीं हुई थी, कोई रिस्ट्रिक्टेड ड्यूटी इंजरी नहीं मेरी हुई, मैन पावर या फिर जो हमारे जो ऑन जॉब जो एक्टिविटीज है वो हमने इस तरह से परफॉर्म की है, ऑफ जॉब जो एक्टिविटीज है वो हमने इस तरह से परफॉर्म की हुई है, लोगों को बिहेवियर इस तरह से मैनेज किया है, वो लोगों की वेल बीइंग जो है वो हमने इस तरह से मैनेज की हुई है, और मैं अपनी सर्विसेज आपको देने के लिए हाजिर हूँ, प्लीज मुझे चांस दीजिए। बंदा जब देखेगा, फिर लोगों ने, मैंने देखा हुआ है सीवीज, मैंने अपने भाई लोगों की देखी है जनाब, ऊपर नाम लिखा होगा, नीचे लिखा होगा कि मैंने जी ग्रेजुएशन की हुई है, ठीक है, ग्रेजुएशन की हुई है, और जनाब मैंने ना एबीसी कोर्स किया हुआ है, आई एम नॉट पॉइंटिंग द कोर्सेज, मैंने एबीसी कोर्स किया हुआ है सर जी, और 4 सफ़ों की मैंने उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखी हुई है, एटलीस्ट 4 से 5 सफ़े सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, while the person is क्योंकि आपको unable। अचीवमेंट्स लिखनी चाहिए, प्रोजेक्ट्स लिखने चाहिए, अपनी एग्जैक्टली अचीवमेंट्स एग्जैक्टली, लिखनी कि उसमें आपको अपनी अचीवमेंट, अपनी स्किल्स लिखनी चाहिए, कि ताकि जो बंदा आपका इंटरव्यूअर है, या जो हायरिंग पर्सन है, या एचआर वाला बंदा है, तो उसको देख के ये अट्रैक्ट हो जाए कि यार ये बंदा मुझे लेना है, ठीक है। फिर जब हम एब्सोल्युटली। इंटरव्यू के लिए देने के लिए जाते हैं लोग, हमारे बाज लोग मैंने ऑब्जर्व किए हैं जनाब, वो कॉजुअल आ जाएंगे, दे विल नॉट टेक केयर कि वो किसी रिस्ट्रिक्टेड जोन में जा रहे हैं या नॉन रिस्ट्रिक्टेड जोन में जा रहे हैं। अगर आप रिस्ट्रिक्टेड जोन में जा रहे हैं, तो वही मैंने कहा कि आप उस कंपनी की वेबसाइट को देखें कि उसमें है क्या, उनकी पॉलिसी क्या है, आप उस कंपनी की पॉलिसी को पढ़िए, उसकी ईएचएस पॉलिसी को पढ़िए, उसकी इन्वायरमेंट पॉलिसी को पढ़िए, ठीक है, उनके अकम्प्लिश प्रोजेक्ट्स हैं उनको पढ़िए, ताकि आप लोगों को इस चीज का आइडिया हो जाए कि यार मैं किस इन्वायरमेंट में जा रहा हूँ। उस तरह से अपने आप को वेल प्रिपेयर करिए, सीवी को देख के, ठीक है, वेल प्रिपेयर करके उनके सामने जाइए।
प्रेजेंटेबल चीज है ना। आप देखिए छोटी सी मिसाल है, अगर हम सुपरमार्केट में एक केक लेने के लिए जाते हैं, बर्थडे का केक छोटा सा लेने के लिए जाते हैं बच्चों का, तो वो देखिए कितना प्रेजेंट किया होता है, उसके ऊपर उन्होंने एब्सोल्युटली, फ्रूट्स लगाए होते हैं, सारा किया होता है, उसकी पैकिंग बहुत अच्छी होती है, एंड देन दे आर प्रेजेंटिंग टू अस सम रिबन शिबन लगा के। सो व्हाइल वी आर गोइंग एब्सोल्युटली, एज ए प्रोफेशनल फॉर सम सीकिंग सम काइंड ऑफ जॉब, वी हैव टू बी प्रेजेंटेबल in your dressing, एब्सोल्युटली। in your PPEs, in your behavior, in your documentation, in your communication, and last thing, your confidence. कहीं भी आप जाते हैं, एक चीज ध्यान में रखिए, being a Pakistani, and first thing is Muslim, that being a Muslim, have a confidence in Allah. अगर जहाँ पे अल्लाह ने अपना का रिस्क दिया हुआ है ना, सब कोई आपका रिस्क ले नहीं सकता, ठीक है। सो जहां भी वो अली जाइए भाई, मुझे कॉन्फिडेंस से ना जाइए। आपने शेर याद करवा दिया है कि अल्लाह को भूल गए लोग फिक्रे रोजी में, हाय हाय हाय, तलाश रिस्क की है राजी का ख्याल ही नहीं। तो रियाजी का आपने वो ख्याल बड़ी नहीं, प्यारी सही बात बड़ी है, सही प्यारी बात है, आपने बात, सही कि बात है। इसका एक तो मतलब है कि ये खोल आंख, जमीन देख, फलक देख, फजा देख, मशरक से निकलते हुए सूरज को तो देख, सूरज को तो जरा देख एक्चुअली। तो ये यार हम बड़ी आपकी प्यारी बात है, इसमें कोई शक नहीं। ये आपकी बड़ी अच्छी बात है, लेकिन बस लोगों हमारे हमारा एक क्या कहते हैं, हमारा ये बैक स्टेप है हमारा, कि हम मशरिक की तरफ उगते हुए सूरज को देखना भूले हुए हैं। जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि रिस्क जो है, मैं सुबह सुबह के टाइम रिस्क सबका होता है, सब उठो करो। बिल्कुल, सही है। ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी काफी काम कर रही है, ठीक है। हमारे काफी पाकिस्तानी प्रोफेशनल हैं। लेकिन मेरी उनसे यही रिक्वेस्ट है कि एक इंटरनेशनल मार्केट में जब आप बैठे हुए हैं, तो अपनी स्किल्स को डेवलप करिए, ठीक है। आपके एब्सोल्युटली, टूल्स जो है ना, हर हर आपके टूल्स हर टाइम शार्पन होने चाहिए। जो इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस हैं, अपने ऊपर लगाएं, ठीक है। अपने ऊपर पैसे खर्च करें, घर वालों का हक है जनाब, घर वालों का हक है, आपने करना है तो घर वालों ने खाना है, नो डाउट, कोई ठीक है। कोई आपने करना है तो घर वालों ने खाना है, और आपके करने के बाद ही घर वालों ने खाना है। लेकिन आप ये जहन में रखिए कि आप कर रहे हैं तो घर वाले खा रहे हैं, अगर आप नहीं करेंगे, फारिग बैठ जाएंगे, आप ग्रीन हैंडेड हो जाएंगे, तो हाउ यू आर गोना अर्न इट। दो ही चीजें, या तो आप जॉब कर लें, तो या आप बिजनेस कर लें। अगर बिजनेस कर सकते हैं तो गो अहेड और अपनी दुनिया बसाइए, और जनाब छा जाए लेकिन दुनिया के ऊपर। बिजनेस में अली भाई, उसमें मैं जरूर अपनी ऑडियंस को बताता चलूं कि बिजनेस मीन द बिजीनेस, यू नो, द बिजिएस्ट पर्सन इन द एग्जैक्टली, वर्ल्ड एक्चुअली। सो बी एग्जैक्टली। रेडी टू वर्क फॉर 18 hours, sometime 20 hours, sometime like me maybe 24 hours, you know, because once you have project and some commitments you have to fulfill। कि अब कई सही बार बात है। आप माशाल्लाह, जितने भी हम लोग 1000+ डिफरेंट सेशंस हम लोग डिफरेंट सिटीज में जा रहे होते हैं, तो कई बार क्लाइंट कहता है कि रात 2 बजे बंदों को पढ़ाना है, दैट इज द शिफ्ट, यू नो, रोटेशन सर जी, टाइम एक्चुअली। मैं चाइनीज के साथ काम करता हूँ, ठीक है। पहले तो चाइनीज के साथ काम कर रहा था, तीसरा साल हो गया मुझे। ये लोग सोते ही नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल, ये लोग रेस्ट ही नहीं करते। मैं फॉर एग्जांपल हम फ्राइडे सैटरडे ऑफ कर लेते हैं। फ्राइडे सैटरडे हम नहीं काम करते जी भाई, ठीक है, गवर्नमेंट ने भी दिया हुआ है, रेस्ट मारो। वो रात को 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे तक मीटिंगें कर रहे होते हैं। मैंने अपने चाइनीज कोलीग से पूछा कि यार तुम रेस्ट क्यों नहीं करते। मुझे उसने पता क्या जवाब दिया, मुझे कहता है अली, जब हम घर से निकल आते हैं ना, तो हम ड्यूटी पे होते हैं। क्या until we बात go back to our home until we go back to our home we are on duty. They don't seek overtime here and there. उनको जो काम दे दिया ना, बस उन्होंने इसको खत्म करना है। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी नेचर, उसमें ये आदत है कि ये काम जो है हमने खत्म करना है, और उसके बाद फिर दूसरा काम देखेंगे। दे आर ऑन बिहाइंड इट। हमारी टीम जो एब्सोल्युटली, है वो थोड़ी इस चीज में थोड़ी सी पीछे हो जाती है। दैट वही चीज है जो पहले की है, कि बिहेवियर स्किल्स जो है ना, वी नीड टू डेवलप। हमारे पाकिस्तानी भाई जो एब्सोल्युटली, हैं, उनको बहुत सी स्किल डेवलप करनी है, इफ दे वांट टू compete इंटरनेशनल मार्केट, ठीक है। ये नहीं है कि अगर एक बंदा है, अगर वो सेफ्टी ऑफिसर लग गया है, तो भाई सेफ्टी ऑफिसर के बाद उसने सुपरवाइजर बनना है। सुपरवाइजर बनने के एब्सोल्युटली, बाद उसको और स्किल्स चाहिए। अगर उसको साइड सुपरिटेंडेंट बन गया, उसको और स्किल चाहिए।
ठीक है, अगर वो साइट इंजीनियर हो गया, उसकी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, उसके और स्किल आ गई है, ठीक है, वो साइट सुपरिटेंडेंट, वो अगर वो सेफ्टी कोऑर्डिनेटर बन गया, उसकी और जिम्मेदारी हो गई है, ठीक है। अब सेफ्टी कोऑर्डिनेटर के बाद वो हेल्थ का कोऑर्डिनेटर लग गया या एनवायरनमेंट का कोऑर्डिनेटर लग गया, वो और ड्यूटी बन गई है। फिर उसके बाद वो सेफ्टी मैनेजर बन गया, उसकी जिम्मेदारी और, फिर वो HSE मैनेजर बन गया, उसकी और जिम्मेदारी है। इसलिए जो बंदा जैसे जैसे खुद को डेवलप कर रहा है, अपनी स्किल्स को डेवलप करे, जो अपने अपने एक प्रोटोकॉल्स बनाए, अपने एक स्किल की लिस्ट बनाए और अपने आप को एक टारगेट में रखे। जैसे आयोश वाले आपको पता ही है, उनमें आपको बकायदा अपने जो ना लेवल आपके अपडेट करने होते हैं, उनको रिव्यू करते रहें और अपनी स्किल को डेवलप करते रहें टाइम टू टाइम। एक टारगेट रखें, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर, इस फर्स्ट क्वार्टर में ये चीजें मैंने अचीव करनी ही करनी है, मैंने अपने ऊपर पैसे लगाने ही लगाने हैं। और वो इतने ज्यादा पैसे नहीं, सर्टिफिकेशन में इतने नहीं पैसे होते हैं, यू नो वेरी वेल। लोग समझते हैं यार 2000 रियाल दे दिए, 4000 रियाल दे दिए, दिल का वो दौरे पे तो हाथ पड़ एक जाता है। 15 दिन की सही गेम है, है, वो कमा भी लेते एग्जैक्टली हैं बिल्कुल। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और एक अपने ऊपर, अपने साल इस तरह से टारगेट करें कि मेरा एक साल की जो एक सैलरी है ना, वो मेरी स्किल्स के ऊपर है, इससे कुछ अच्छा फर्क नहीं अली पड़ेगा, भाई, यकीन मैं करिए। थोड़ा सा ना आपकी इसमें ज़रूर राय लेना चाहूँगा, हमारी ऑडियंस के लिए भी, क्योंकि माशाल्लाह अभी भी काफ़ी, एक वो आपको पता है, सब फेसबुक पे ही हैं और जो हमारी कम्युनिटी है ज़्यादातर वो फेसबुक लाइव और सारी इन्हीं चीज़ों में, लेकिन और आपको पता है कि फ्लड ऑफ इंफॉर्मेशन हैं। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा हम ऐसी डायरेक्शन भी साथ साथ देते चलेंगे, जैसे सेफ्टी प्रोफेशनल को जो मेरे एनालिसिस हैं पिछले 10-11 साल में, कि उनका फोकस सेफ्टी प्रोफेशनल जो स्किल सेट है उस पर तो बहुत ज्यादा है, लेकिन जो सॉफ्ट स्किल्स हैं लाइक इमोशनली बीइंग इमोशनली इंटेलिजेंट और डिसीजन मेकिंग, टाइम मैनेजमेंट, इफेक्टिव सेफ्टी लीडरशिप और काइंड ऑफ यू कैन से क्रिटिकल थिंकिंग और or project management skills on the other side, even because at the end as a safety professional we also deal different projects, right? तो इस तरफ मैंने ना ज्यादा रुझान नहीं देखा, मतलब, और या मेरी कम्युनिकेशन स्किल जो है वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स पे, मतलब मैंने रैमको के अंदर रैमको के लोगों को डायरेक्ट पढ़ाते हुए खुद देखा है कि दे आर इंटरेस्टेड, कि जिनको हम सर्व कर रहे हैं वो हमसे ट्रेनिंग्स ले रहे हैं, लेकिन जो हमारी कम्युनिटी है उनको ये है कि बस ये सेफ्टी के कोर्स करेंगे तो दैट इज द होल वर्ल्ड। मतलब आप देखें अली भाई, माशाल्लाह आपके पास क्वालिफिकेशंस कम नहीं है, अब आपको अगर बोलना ही ना आता हो तो इमेजिन करें कि हाउ यू कैन प्रेजेंट योरसेल्फ। तो अब सही आप बात देखें माशाल्लाह अपनी स्किल्स के साथ आपने अपनी कम्युनिकेशन इनहेंस की, और दैट इज द रीजन कि 500 बंदा भी आपके सामने बैठा होता है एंड यू डिलीवर इंडक्शंस एंड सेफ्टी मीट काइंड ऑफ सेफ्टी है, इंटरनल राइट ट्रेनिंग सेशंस। राइट तो राइट ये जो राइट। साइड पार्ट है, व्हाट यू गोना सजेस्ट टू पाकिस्तानी कम्युनिटी के इस तरफ भी थोड़ा सा रुझान जरूर रखें। इट्स नॉट लाइक ओनली द नॉलेज अबाउट HSE, इवन सॉफ्ट स्किल्स आर आल्सो मच इम्पोर्टेंट। वही बात है कि जैसे आपने कहा, बिल्कुल आपने सही कहा, इसके ऊपर हमारी कम्युनिटी इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही। उनकी ध्यान इसी में ही है कि जो ब्रेड एंड बटर है, लेकिन ये चीज़ होनी चाहिए कि ब्रेड एंड बटर के साथ कुछ और भी लवाजमात होते हैं जो ज़रूरी होते हैं। अगर आपने ब्रेड एंड बटर ले लिया है तो आपको बटर लगाने के लिए भी बटर नाइफ चाहिए, ठीक है, ब्रेड रखने के लिए प्लेट भी चाहिए। सो ये बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ कि हमारे जो भाई हैं, पाकिस्तानी प्रोफेशनल्स हैं, उनको इस चीज़ की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि उनके पास ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। कल मेरी एक दोस्त से बात हो रही थी पाकिस्तान में, ही इज़ हैविंग लीडिंग ट्रेनिंग सेंटर इन इस्लामाबाद। तो मुझे उसने कहा कि यार निबोश का कोर्स तो मैंने स्टार्ट हो गया है, स्टूडेंट मेरे आए हुए हैं, एंड ट्रेनर साहब जो है ना अभी पहुंचे नहीं है। तो ये यार मैं बड़ा तंग होता हूँ इनसे। मैंने कहा यार वो इसका मतलब कि वो बंदा ट्रेनर है ही नहीं है। जिस बंदे को टाइम मैनेजमेंट का नहीं पता, कि जो स्टूडेंट बैठे हुए हैं, जब हमने 2002 2003 4 में निबोश किया था, जब किया था तो वो गोरा हमसे पहले आके खड़ा होता था और वो सिगरेट पी रहा होता था बाहर। हम सुबह जब इवन पहुंच मैं रहे होते आधा थे आगे। पौना घंटा 1 घंटा पहले जा रहा होता हूँ अली भाई, इसमें कोई बिल्कुल। शक नहीं। तो वही चीज है कि ये जो चीजें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी हो गई, ठीक है, बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी हो गई, टाइम मैनेजमेंट होगी, ये सॉफ्ट स्किल सारी जो हैं, टाइम मैनेजमेंट होगी, रिस्पेक्ट मैटर्स हो गए, ऑफिस का एनवायरनमेंट हो गया, ये सारी चीजें, ये जो सेफ्टी प्रोफेशनल्स हैं इनके लिए बहुत जरूरी हैं और इन्हें ये अचीव करनी चाहिए, ठीक है। एक एक टारगेट को रख के, एक एक टारगेट को रख के, एक एक चीज को रख के ये सारी उन्हें करनी चाहिए और इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इन चीज से डिनाई करेंगे तो काफी ज्यादा चीजें हैं जो
और भी नाएबल हो जाएंगी। जैसे मैंने शुरू में बताया था कि जैसे सऊदी अरामको मेजर इंसिडेंट पैरामीटर्स हैं या सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है सऊदी अरामको की, ये वो चीजें हैं जो सऊदी अरामको के सीएसएम में इतनी इतनी डिटेल से नहीं मेंशन की हुई। इसके लिए उन्होंने एक अलग ही चीज रखी हुई है, उसमें उन्होंने अपनी सेफ्टी गाइड्स रखी हुई हैं और इस तरह से और ट्रेनिंग्स कैसी रखी हुई हैं जो सीएसएम में नहीं है। सीएसएम एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन का मैनुअल उन्होंने बनाया हुआ है एब्सोल्युटली जिसमें बेसिक आई बेसिक टोटली इंफॉर्मेशन दी एग्री हुई है। विद यू। सही है। वो एब्सोल्युटली। जो सीएसएम की जो मेजर जो उनका स्टैंडर्ड बुक है 400 400 450 पेजेस 400 पेजेस की वो किताब है और उसमें उन्होंने टॉपिक के बारे में ब्रीफ इंफॉर्मेशन दी है। जबकि आपको डिटेल इंफॉर्मेशन लेने के लिए आपको इंटरनेशनल रेफरेंस ले वो एनएफपीए के एनएसए है ओशा या जो भी गाइडलाइंस है वो इसकी डिटेल में नहीं जाते। लेकिन साथ में जैसे कहा कि अरामको जो हमारे अरामको के क्लाइंट हैं या फिर रॉयल कमीशन के क्लाइंट हैं या साबिक के जो हमारे क्लाइंट हैं वो अपने एम्प्लॉयज को मैंडेटरी सेंड करते हैं इन कोर्सेज के लिए। ठीक है। उसमें लर्निंग है, लर्निंग स्किल्स हैं, उनमें कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, ठीक है, प्रेजेंटेबल स्किल्स हैं जो वो मैंडेटरी सेंड करते हैं और उनके जो सेफ्टी पासपोर्ट्स होते हैं उनके ऊपर बाकायदा ये मेंशन होती है कि किसने कब जाना है और वो उन्हें जाना ही होता है। ठीक है। और इसी तरह से हमारी जो हमारे पाकिस्तानी भाई हैं उनके लिए उन्हें भी चाहिए कि खुद को रिव्यू करें इंटरनेशनल मार्केट में आके। अभी देखिए अभी 10 साल पहले वाली बात नहीं है या 5 साल पहले वाली बात नहीं है कि जनाब सुबह बंदा गया है 40 50 20 30 100 200 जितने भी प्रोजेक्ट के बंदे उन्हें इकट्ठा किया, टूल बॉक्स की और बस सारा दिन फारिग। अभी नहीं, अभी चीजें काफी ज्यादा फास्ट हो गई हैं। अभी एप्लीकेशंस आ गई हैं जहाँ पे आपकी चेकलिस्ट होती हैं, जहाँ पे आप चीजें चेक कर रहे होते हैं, सारी चीजें करें। तो इसी तरह से ये जो चीजें हैं ये बहुत जरूरी हैं और इन चीजों को इन्हांस करने के लिए खुद हर बंदे को टाइम निकालना पड़ेगा। खुद को डेवलप करना है। अगर आपने खुद को डेवलप करना है तो आपको खुद को हिलाना नहीं पड़ेगा। आपको कोई पुश नहीं दे सकता जब तक आप खुद नहीं पुश करेंगे। और अगर आप एब्सोल्युटली। चाहते हैं कि करेंगे, हमारी जुबेल के में रॉयल कमीशन में और साबिक में number of Pakistanis are there which they have worked in Sabiq and here and there. No need to name any of them because it's open platform. लेकिन मैं सरप्राइज हुआ बस बंदों को मिलके कि उन्होंने 10-10 साल दिए हुए हैं सेफ्टी को, लेकिन जब वो इंटरव्यू के लिए उन्हें बुलाया गया और बुला के चेंज ओवर किया गया, वो यानी एक एरिया से दूसरे एरिया में, एंड दे वाज अनएबल टू डू इट। वो फेल हो गए या फिर कंफ्यूज हो गए। नहीं कहना चाहिए, कंफ्यूज हो गए। वो उस चीज को प्रॉपरली रिस्पॉन्ड नहीं कर पाए एंड इट वाज रियली लैकिंग थी, वो एक लैकिंग थी। लेकिन वही बंदा अगर वो डेली खुद को अपडेट करता रहता है, हमारे मोबाइल अपडेट होते हैं टाइम पे, हमारी मोबाइल की एप्लीकेशनें अपडेट होती रहती हैं, बैकग्राउंड में अपग्रेड हो रही थी होती है, हमारा कंप्यूटर अपग्रेड होते हैं, हमें जरूरत नहीं होती लेकिन फिर वो कर रहे होते हैं। सो वी नीड टू अपडेट अवर सेल्फ, our certification, our qualification, our behavior zone, and these are management skills which they are really required to have the job skills. It has to be updated in the अली भाई, background. मैं पूरी ऑडियंस को बताना चाह रहा हूँ कि सऊदी अरामको ऐसे ही पूरी दुनिया में कामयाब नहीं है कि It's world वो एक it's हाई leader टेक number one. ब्रांड है जो कि बड़ी स्मार्ट प्लानिंग के साथ और बड़ी ऑपरेशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स हैं उनकी, कि पूरी दुनिया में भी अगर पूरी दुनिया के डाटा को भी अब अगर उन्हें संभालना पड़े ना, तो आपको पता है एक जो हैकिंग का इंसिडेंट हुआ था लेटर ऑन, उसके दे बाद लर्नड अ लेसन, नाउ दे आर they वेरी learn मच। they learn lesson, exactly, they learn lesson and they make their life easy. वो जो इंसिडेंट था, so everybody तो learns अली from भाई, incident. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को फ्यूचर में किस तरह देखते हैं, कि सेफ्टी में किस तरह रैम को, या कोई एग्जांपल या आपके प्रोजेक्ट्स में कोई इस तरह की इंटीग्रेशन आपने देखी हो, कि हाउ सर यू जी आर इंटीग्रेटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशली हाई हैजर्डस जो प्रोसेसेस हैं, कि जहाँ पे आपको सर पता है जितना भी फ्रंट लाइन पे आप ह्यूमन को नहीं ले सकते। तो उस बिल्कुल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा अगर हमारी ऑडियंस को ये भी एक अपडेट मिल जाए कि हाउ वी आर सर, टैकलिंग। जो जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें सऊदी अरामको है या दूसरे जो प्रोजेक्ट देते हैं जो क्लाइंट हैं, ठीक है, वो ऑलरेडी इस सर्विसेज को डेवलप कर चुके हैं और इसको यूटिलाइज कर चुके हैं। ठीक है। डेटाबेस ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं। आप उस डेटाबेस में सिंपली अपना एक रिस्क देते हैं और वो आपको प्रिकॉशंस, उसके प्रिवेंटिव मेजर्स, उसके एडमिन मेजर्स, उसके इंजीनियर मेजर्स, वो सारे के सारे आपके आगे ला के रख देता है।
यानी इस चीज को आप जहन में रखिए कि चीजें जितनी तेजी से चेंज हो रही हैं, अगर लोग, हमारे लोग जो हैं वो खुद को चेंज नहीं करेंगे, उनको नहीं करेंगे, तो पीछे रह जाएंगे। ठीक है, वही एक सादी सी मिसाल है, आपने भी बहुत दफा सुनी होगी, वो हेलीकॉप्टर वाली पिक्चर आपने देखी हुई है, वो हेलीकॉप्टर एक उड़ रहा है और उसने एक कैमरा पकड़ा हुआ है हाथ में, सही है, तो वो जनाब वो बना रहा है, तो वो एक छोटा सा ड्रोन आया, अभी 150 रियाल का अच्छा वाला ड्रोन मिल जाता है कैमरे वाला, वो 150 रियाल के, उसने solve किया। एग्जैक्टली वो 150 रियाल के ड्रोन ने जनाब हेलीकॉप्टर को रिप्लेस किया, उसके कैप्टन को रिप्लेस किया, वो कैमरे वाले को रिप्लेस किया, उन सब की जॉब चली गई। ठीक, सही है, ड्रोन वाला जीत गया। ड्रोन वाला क्या था, उसने कमरे में बैठ के मोटरें लगा के तो जनाब उसने उसकी सॉफ्टवेयर बना के चला दिया। सो अभी अभी जितनी भी बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनकी रिस्क असेसमेंट होती है प्रॉपर, उनकी हैज़-ऑफ स्टडी होती है। ठीक है, अगर आप खुद को अपडेट करते हैं और आपको इन सारी चीजों का पता है कि इनके रिस्क फैक्टर क्या हैं, रूट कॉजिंग कैसे होती है, रूट मैपिंग कैसे होती है, ठीक है, इन Absolutely. इन रूट मैपिंग को कैसे इनके ऊपर काम करते हैं, कंबाइंड स्टडीज कैसे होती हैं, कंबाइंड डिस्कशन कैसे होती है, कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन कैसे होती है, ठीक है, तो इनको Brilliant. जाके इनकी इनकी रोड मैपिंग कैसे करनी है, इसकी रूट कॉज मैपिंग कैसे करनी है। जब एक बंदा खुद को उस सिस्टम में ला के उसके ऊपर काम करना शुरू करता है, तो यकीन करिए कि देन यू विल फाइंड देयर आर लेस कंपटीशन फॉर यू एंड यू हैव वेरी ग्लो फ्यूचर फॉर योरसेल्फ। लेकिन अगर आप इन चीजों के Very ऊपर नहीं करते, फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ कि थोड़े दिन पहले एक कंपनी में एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, और उनके बंदा काफी ज्यादा चला गया। मेरी उनसे बात हो रही थी तो मैंने कहा यार क्या मसला हुआ था, व्हाट हैपेंड? कुछ नहीं सर जी, वो बंदा इस तरह से कर रहा था, ये कर रहा था तो ये हो गया। तो मैंने उसकी रूट कॉज क्या है? वो सर जी रूट कॉज तो यही है ना, ये रूट कॉज है। एंड वो जो कि जिस ह्यूमन बंदे से मेरी बिहेवियर बात, रूट कॉज है दैट्स एग्जैक्टली ये यानी वो बंदा एक मैनेजमेंट लेवल का बंदा था, तो मैंने उससे बात की, मैंने कहा यार खुदा के बंदे, तुमने पकड़ के गोली कर दी है, व्हाई डोंट यू गो विद द ऑफिशियल प्रोसेस, व्हाई डोंट यू इनवाइट योर मैनेजमेंट, व्हाई डोंट यू कॉल योर वर्कर्स, ठीक है, टेक्निकल स्टाफ है, जो दूसरा स्टाफ है, जितने भी स्टाफ हैं, जो जो इसमें इन्वॉल्व हुई हैं, सारी मेंबर्स इन्वॉल्व हुए हैं, तुमने क्यों नहीं उन सबको बुलाया, सबसे क्यों नहीं उनकी स्टेटमेंट ली, उनसे क्वेश्चन क्यों नहीं किए, ओपन एंडेड क्वेश्चन तुमने क्यों नहीं किए उन सबसे? जरूरी नहीं है इन्वेस्टिगेशन करते हुए जो है हमारी टीम मेंबर जो है पिन पॉइंट करें कि उंगली उठा उठा के अगलों को इशारा करके कहें कि ये तेरी मिस्टेक हुई है। हमारा ये काम नहीं है, वी आर सेफ्टी प्रोफेशनल, हम सेफ्टी के बंदे हैं, हमारा काम है कि कुछ कोई मसला है तो उसके करेक्टिव और प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जाएं ताकि वो रिपीट नहीं हो वो सारा मैटर। लेकिन हमारे अली पिन भाई पॉइंटिंग का मेरे बहुत साथ ज्यादा ना राना इशफाक अली खान साहब हैं, ही इज एन एंटरप्रेन्योर एंड बिजनेसमैन इन पाकिस्तान माशाल्लाह। और माशाल्लाह। मैं एक्चुअली ना टू बी वेरी ऑनेस्ट कि दिस इज माय वन ऑफ द पैशनेट विश एंड ड्रीम इवन, क्योंकि जो उनके हम्म, प्रोडक्ट्स हैं लाइक ही प्रोवाइड्स हैवी जनरेटर्स एंड सो मेनी अदर थिंग्स। माशाल्लाह। लेकिन अब ये भी एक एफर्ट है कि हम ये जो माशाल्लाह सॉलिड ग्राउंड के जो हाईली टेक प्रोफेशनल्स हैं एज एंटरप्रेन्योर, उनको हम इस मार्केट में किस तरह लेके जाएं। तो व्हाट डू यू थिंक कि ये जो हैवी इक्विपमेंट की इंडस्ट्री है, इसमें जो टीपीएम जो आपका टोटल या जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्लान्स हैं आपके, प्रिवेंटिव हाउ यू आर मेंटेनेंस प्लान। मेकिंग श्योर, और कितना चैलेंज है सप्लायर्स के लिए, या चाहे वो क्रेन्स दे रहे हैं आपको रेंटल पे, चाहे जनरेटर्स दे रहे हैं, चाहे फोकलिफ्ट्स दे रहे हैं। तो मैं चाह रहा हूँ क्योंकि राना साहब माशाल्लाह वो लाइव है, तो मैं चाह रहा हूँ कि चले इस टॉपिक पे उनको भी अंदाजा हो जाए कि आई एम ऑलरेडी वर्किंग ऑन इट इंशाल्लाह। सर जी टीपीएम जो है और क्वांटिटेटिव मेजर और क्वालिटेटिव मेजर्स जो हैं ये हाईली इम्प्लीमेंट करते हैं इन चीज के ऊपर, ठीक है, इसमें हाउ आर यू, इसमें अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम हाउ सलाम। आर यू डायमंड, कैसे हो मेरा बेटा? वालेकुम सलाम। जस्ट अ मिनट। You are ओके। the king, man. No harm. You can sit with your Baba, mashallah. Okay? Yes, you can enjoy life. Yes. आप ही तो फ्यूचर ऑफ सॉरी पाकिस्तान का माशाल्लाह। सर। नहीं, इट्स ओके अली भाई, प्लीज। नो इट्स ओके, थैंक यू। ओके, नो वरी। ओके वो तो फिर बता, हम बात नहीं कर सकेंगे सही तरह से। ओके तो इसमें जो हैवी इक्विपमेंट इंडस्ट्री है, यू नो वेरी वेल कि इसमें काफी ज्यादा डेवलपमेंट हुई है, चाहे वो ऑन व्हील इक्विपमेंट है या ऑन ट्रैक इक्विपमेंट है या फिर लाइक जनरेटर्स और इस तरह से है।
इनमें सेफ्टी डिवाइसेस जो हैं वो बड़े लेवल तक अपडेट हुई हैं, और इसमें अब अरामको जो है वो इस चीज़ को कंसिडर कर रही है कि वो उसी तरह का इक्विपमेंट लें जो हाई एफिशिएंट इक्विपमेंट हो। इस तरह का इक्विपमेंट नहीं अरामको वाले भी एक्सेप्ट करते, कि जो रोड्स के ऊपर जैसे खड़े होते हैं और उसमें फॉर सेल या फॉर रेंट वगैरह का जो उसमें टारगेट उसमें लगा होता है। ठीक है, इसमें जैसे राना साहब जैसे बात कर रहे थे, ठीक है, उस अरामको के स्केड्यूल बी को अगर वो पढ़ें एक दफा, ठीक है, मैं डायरेक्टली पॉइंट पे बात कर रहा हूँ, अगर स्केड्यूल बी को वो अरामको के पढ़ते हैं तो उसमें उन्हें एक कंप्रीहेंसिव इंफॉर्मेशन मिलेगी, जिसमें नो डाउट इट कैन इनहांस देयर इंफॉर्मेशन अबाउट स्प्रेडिंग बिजनेस टुवर्ड द कंस्ट्रक्शन कंपनीज। एक्सेलेंट। और अली भाई, अगर हम यहाँ से इन्वेस्टर अपने पाकिस्तान में लेके जाना चाहें, कि आपको पता है कि टू बी वेरी ऑनेस्ट कि वी हैव अ लॉट ऑफ पाकिस्तानीज के जो माशाल्लाह यहाँ पे अच्छे एंटरप्रेन्योर हैं, बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं वो, अलॉन्ग विद साउदी स्पॉन्सर्स इवन, और कुछ तो साजिया के जरिए डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी लेके आए हैं। सागिया के जरिए, तो सही है, सही है। इन्हीं को हम किस तरह मोटिवेशन, व्हाट डू यू थिंक, कि कौन सी इंडस्ट्रीज आए जो इस मार्केट से हम पाकिस्तान में भी, क्योंकि सेफ्टी में तो आपको पता है कि वी बिलोंग टू एवरी प्रोसेस, एवरी एक्टिविटी, एवरी मटेरियल, एवरी हैवी इक्विपमेंट, एवरी ह्यूमन इन द इंडस्ट्री एक्चुअली, कि हम ऑल स्टेक होल्डर्स को वी आर टैकलिंग एक्चुअली। सो इन सॉर्ट ऑफ डायरेक्शन व्हाट डू यू सजेस्ट कि हम किस तरह यहाँ से कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जो पाकिस्तान में ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, दिस इज हाउ वी कैन बूस्ट अप आवर इकोनॉमी आल्सो इंशाल्लाह, क्योंकि आपको पता है सर इन्वेस्टमेंट के पाकिस्तान, बगैर तो कोई कंट्री भी नहीं चलता। नो नो नो, देयर इज नो मनी, इफ नो मनी नो हनी। नो, एब्सोल्युटली राइट। तो ये भी एक बेस्ट सर नाशे का इनिशिएटिव है कि हम किस तरह जो है वो मोबिलाइज करें इस कैंपेन को, कि हमारे, क्योंकि कई सऊदीज फ्रेंड हैं, सबसे मैं ये बात करनी शुरू हो गया हूँ कि यार इन्वेस्ट इन प्रॉपर्टी, इन्वेस्ट इन फार्मास्यूटिकल, इन्वेस्ट इन एल्यूमिनियम, इन्वेस्ट इन फाइबर, यू नो, सो व्हाई यू आर जस्ट व्हाट थिंग्स आर स्टॉपिंग यू टू स्टार्ट योर बिजनेस इन पाकिस्तान, बिकॉज इट्स अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी माशाल्लाह, आप समझते हैं। बिल्कुल सर, इश्तियाक भाई, जो पाकिस्तान है इज अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, एंड पाकिस्तान इज अ गोल्डन बर्ड। ठीक है, अगर आप कुछ भी इन्वेस्ट करते हैं पाकिस्तान में, कुछ भी स्टार्ट करते हैं, द थिंग इज के वहाँ पे आपको लोगों का कॉन्फिडेंस जीतने के लिए टाइम नहीं लगता। ठीक है, आप देखते हैं कि छोटी सी मिसाल मैं देता हूँ, रोड के ऊपर अगर जाके एक बंदा बैठ के तमाशा लगाने वाले बैठ जाता है, ही हैज एबिलिटी टू गैदर 100 ऑफ पीपल अराउंड हिम। ठीक है, और उन्हें गैदर करके वो अच्छी खासी सेल कर लेता है, और सेल करके वो अपना निकल जाता है, टाइम लगा के निकल जाता है। सो पाकिस्तान में सिंपली all the foreigner investors which they are, we need to win their confidence only. If we win their confidence and you provide a safety over there, तो नो डाउट कि पाकिस्तान के लिए बड़ा फायदेमंद होगा। एक छोटी सी हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, सर्विसेज और हेल्थ सेफ्टी एनवायरनमेंट के ऊपर बात करते हैं। सिर्फ इसी चीज को अगर पाकिस्तान में लें तो इधर बहुत ज्यादा काम होने वाला है। सेफ्टी में हमारे, सिर्फ सेफ्टी में हमारे, हमारा, हम, मेरा नहीं ख्याल कि हम 5% भी सेफ्टी में काम कर रहे हैं। ठीक है, 5% भी सेफ्टी में काम कर रहे हैं। हेल्थ में हमारा जो इनिशिएटिव या इतना काम हो रहा है, इन्वायरमेंट में इतना काम हमारा नहीं हो रहा। ठीक है, इन्वायरमेंट में हमारा इतना काम नहीं हो रहा, हमारी इवन पब्लिक में। अली भाई, ये जो कोविड का इशू है, इसमें मैं, क्योंकि मैं भी वो डाटा एनालिसिस में डेली वॉच कर रहा हूँ इन चीजों को, आप देखें जो माइंडसेट है कि नोबडी इज थिंकिंग कि यार सबसे ज्यादा एजेड लोग हमारे जो बुजुर्ग हैं वो जाते जा रहे हैं, एंड नोबडी इज थिंकिंग कि यार वो क्यों जा रहे हैं, क्योंकि जो सही, नौजवान है वो तो इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा लेके बैठे हुए हैं, वो तो ऐसा ही अपने है, आप को ऐसा ही। मतलब 14 दिन निकाल के वायरस को हरा के तो दोबारा लाइफ को रीगेन कर लेते हैं। लेकिन जो हमारी एजेड कम्युनिटी है, जो हमारे बुजुर्ग हैं, जिनकी दुआओं जी, से माशाल्लाह हमारा सारा सिस्टम है, तो व्हाट हमारा यू सिस्टम सजेस्ट चल कि रहा हम अपने यूथ को कैसे समझाएं कि यार वो ऐसे ही नहीं जा रहे, देयर इज अ रीजन बिहाइंड, कहीं ना कहीं वो मतलब हम लोग लाड प्यार में बजाय इसके कि उनको आइसोलेट करें, उनको मोटिवेट करके बताएं कि जी, या उनका इतनी केयर करें कि उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग करने के लिए कुछ ना कुछ हम ऐसे लवाजमा जरूर अप्लाई करें। चलें, हम तो एहतियात नहीं करें बिकॉज वी आर यंग इनफ, राइट, है। but our राइट, elders are not young, you know, they are aged, I mean their immunity
वो आप समझ रहे हैं। तो इस एक सेगमेंट में हाउ यू गोना मोटिवेट, ये बहुत मतलब खतरनाक ब्रेन है यूथ का, जो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे कि हमारे बुजुर्ग, क्योंकि आप भी फेसबुक पे देख रहे हैं कि एवरी डे देयर इज अ सेकंड न्यूज, और एजेड ज्यादा जो कम्युनिटी है वो 50+ एज के जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं वो टारगेट पे हैं, जिसमें मैं अपने ना हमारे डॉक्टर साहब हैं मतीउर रहमान साहब, एंड आई टू बी वेरी ऑनेस्ट आई फाउंड हिम द लकीएस्ट वन, कि अबव माशाल्लाह 55 और 60 एज है और स्टिल ही सर्वाइव्ड अल्हम्दुलिल्लाह इंक्लूडिंग द फैमिली माशा मेंबर्स। लेकिन माशाल्लाह। जिस तरह वो सर्वाइव उन्होंने किया है, वो सारी स्टोरीज मैंने उनकी पूरी फॉलो की हैं। इट वाज नॉट माशाल्लाह। इजी एट ऑल। और ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से आई रियली वांट, बिकॉज माशाल्लाह यू आर अ कॉर्पोरेट सेफ्टी लीडर, सो आई रियली वांट यू टू, बिकॉज you always required somebody as a mentor or as a motivational speaker, you know, for a certain subject, क्योंकि मैं तो डेली या बात कर रहा हूँ तो वो मुझे सुन सुन के हो माशाल्लाह। सकता है सब यूज टू हो गए हूँ, आदत होगी हो कि यार ये तो डेली आता रहता है। तो you are unique today, so please let them understand this is very much important factor, you know. वो मैं राना साहब इसके ऊपर एक छोटी सी एक वो एक पाकिस्तानियों का एक तकिया कलाम है, उससे मैं शुरू करके आपको बता देता हूँ कि हमारी पब्लिक की जो ना एक सेइंग है कि जड़ी रात कबर च है उबाड़ नहीं है। सही है। You are सो absolutely सो दिस मेंटालिटी हैज टू बी चेंज्ड कि अगर ये मैयर्स जो ले रहे हैं, वर्ल्ड वाइड मैयर्स ले रहे हैं, मींस समथिंग ऑन इट्स बैक, इसके पीछे कोई चीज है। ठीक है। ये नहीं कहना कि जड़ी रात का, ऑफ कोर्स बीइंग ए मुस्लिम वी हैव स्ट्रांग बिलीव दैट एवरीबॉडी हैज टू गो वन डे। सही है। लेकिन throwing yourself from a high pillar and making yourself as a suicide is haram also. ठीक है। कोविड हैज टेकन अ लॉट ऑफ लाइफ्स एंड इवन मैनी ऑफ हमारे बहुत से दोस्त हैं जो यहाँ पे इवन के सऊदी अरेबिया में रह रहे थे and they are no more with us. ठीक है। exactly They has gone, they left their families and they went to hospital. They was being vaccinated or treated, but they couldn't win this sickness, and they battle are gone. exactly. And they are gone, and we are the lucky one who are sitting here, or we are having still life. But putting your life, जानते हुए भी किसी चीज में हाथ बढ़ा देना, जब आप, हर बंदे को पता है कि सांप एक जहरीली चीज है, अगर आप हाथ बढ़ाएंगे तो वो आपको बाइट करेगा। ठीक है, वो बाइट करेगा करेगा। क्योंकि उसकी बिच्छू नेचर के है ना, इसी तरह बिल्कुल बायोलॉजिकल जो भी हैजर्ड है उसकी नेचर है बिल्कुल नुकसान पहुंचाना। बिल्कुल उनकी नेचर है, उनकी नेचर है। अभी इन्फेक्शन जो है एक्सट्रीम पे जा रहा है, पाकिस्तान में इन्फेक्शन पे दोबारा से जो है एक्सट्रीम पे आना शुरू हो गया है। हमारे ये लोग नेक्स्ट 2 प्रिकॉशंस वीक्स को आर वेरी इग्नोर, क्रिटिकल अली भाई, ये जो वेरी नेक्स्ट 2 वीक्स हाई, हैं दे आर इट्स वेरी मच क्रिटिकल, हाईली अलार्म्ड, क्योंकि इट्स बूम हाईली अप अलार्म्ड। करेंगे। इवन सऊदी अरेबिया, आप हाँ देखें कि 3%। गल्फ में कितनी प्रिकॉशंस ले रहे हैं, जो हमारे जो दूसरी गल्फ की स्टेट्स हैं या कंट्रीज हैं वो कितनी प्रिकॉशंस ले रहे हैं। तो हमारी जितनी भी ये नहीं कि सारे जो हमारी ऑडियंस में जितने भी लोग बैठे हुए हैं, जरूरी नहीं कि वो सारे सेफ्टी प्रोफेशनल ही हों, कि हर एक की जिम्मेदारी बनती है। अगर आप चीज देखते हैं कि जो कोई भी अलार्म हो सकती है या रिस्क अलार्म कर रही है, आप उसको होल्ड करें, उसको मना करें। ठीक है, उसको होल्ड करें, उसको मना करें, और उसको खाली मना ऐसे नहीं करना कि उसको मना कर देना, विद सम रेफरेंस। ठीक है ना। एब्सोल्युटली, उसके साथ कोई ये रेफरेंस दें, दलाइल में उन्हें वजन है। दलाइल दें, बेशक उसके साथ प्रॉपर उन्हें रेफरेंस दें कि ये चीज है, इसके इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं और इसके कंसिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। ठीक है। एक आदमी अच्छा खासा सेहतमंद है, चाहे वो एल्डरली पर्सन है, वो यंग है, या फिर ग्रोइंग है, या फिर वो छोटा बच्चा है, ऑफ कोर्स फैमिली मेंबर्स इन्वॉल्व है उनके साथ। तो जो कंसिक्वेंसेस है, हो सकता है वो जो एल्डरली पर्सन है ही इज नॉट नोन, और उसको नहीं पता इसके रिस्क के बारे में, नहीं पता, एंड इन केस ही लॉस्ट हिज लाइफ, सो हाउ द फैमिली इज गोना सफर इट, अली हाउ भाई मैं द इसमें ना ऐड करता चलूं, इसमें एक चीज ऐड करता चलूं कि जो मैंने एनालिसिस, क्योंकि सिंस वी आर इन द सेम फील्ड, तो मेरे एनालिसिस का कह रहे हैं कि यंग लोग जो हैं वो वायरस को वेलकम कर रहे हैं, बाहर से घर लेके आ रहे हैं, यस। वो सरवाइव कर जाते हैं बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी, लेकिन पकड़े जाते हैं पेरेंट्स, उनके जो बॉयज दाद और सारे वो जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, यू नो,
कि वो तो यंग है, वो तो सरवाइव कर जाएंगे, लेकिन व्हाट वुड हैपन टू द पीपल जो कि बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी नहीं है बल्कि वीकेस्ट है। तो लेकिन वो जो हमारी यंग जनरेशन है, दे डोंट रियलाइज, दे ऑल थिंक दिस इज ऑल नेचुरल, यू नो, बट इट्स नॉट नेचुरल। ये नेचुरल नहीं है। जो फॉर एग्जांपल जो यंग है ना, वो कैरियर्स हैं। जो यंग हैं वो कैरियर्स हैं, वो बाहर जाते हैं, कैरियर्स। वो कैरी करते हैं। जो हमारे अंदर रहने वाले होते हैं वो लो इम्यून हुए होते हैं, क्योंकि वो दे आर अवे फ्रॉम सन, दे आर अवे फ्रॉम लाइट्स, ओके, एंड दे आर लो फ्रॉम इम्यून। और वो जब वो कैरियर लेके उन्हें ले जाते हैं तो फिर वो उनका जो इम्यून है वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता, सो दे सफर, सिंपली दे सफर। सो ये एक काइंड ऑफ कंपेन जो है वो हम सब की जिम्मेदारी है कि इस कंपेन को राउट करें विद गाइडलाइंस, प्रॉपर गाइडलाइंस, कि हाउ दे कैन टेक प्रिवेंटिव मेजर्स just to fight back this infection or any environmental or biological infection which raised up time to time. जरूरी नहीं कि ये अभी कोविड है, इंशाल्लाह इट विल गो आउट, लेकिन कोई भी जैसे भी है, आपको पता है कि हर 2 4 5 साल के बाद कोई ना कोई कैरियर जो इन्फेक्शन आ जाता है। सो वी नीड टू develop ourselves that any time any infection is happening, so we need to provide proper guideline to the people, so it could be useful for all the humanity and society. Thank you very much, Ali bhai. Thank you very much for your precious time and, you know, such a wonderful knowledge for our audience, inshallah. And it's a great contribution. Most welcome. I'm very much grateful personally, mashallah, because you're always very much dear to me, and I know how passionate you are, mashallah. और आपकी कामयाबी का जो राज है, जो मैं अपनी ऑडियंस को बताता चलूं कि you know how to tackle 5,000 people or 10,000 people, how to manage. You are very much strong in public dealing, mashallah. Alhamdulillah, I have faced 11,000 people in one time. Yeah, alhamdulillah. No, that's your unique point. It's blessing of Alhamdulillah. You Allah. are very much knowledgeable. Blessing of Allah. अल्लाह आपको मज़ीद कामयाबियां दे जी इंशाल्लाह। Thank you very और much. पाकिस्तानी ऑडियंस को कोई लास्ट मैसेज आपकी तरफ से जो आप समझें कि some of the golden words, the few or the last line. Saji, the one and only thing, if you really want to successful, right? If you really want to successful, just keep your tool sharpened. Please keep your tools sharpened. कि वो फौजी बिल्कुल कामयाब नहीं हो सकता जिसके गन को जंग लगा हो। जंग लगा हो सर जी, वो नहीं हो सकता। प्लीज spend money on yourself, develop your skills and continue, keep the continuity. उसमें रूटीन रखें, कोई भी चीज करके छोड़ नहीं दीजिए। बाज लोग हमारे हैं, उन्होंने ओशा किया था जब वो छोटे थे, उन्होंने ओशा किया था, वही ओशा हर सीवी के साथ लगा हुआ है। प्लीज क्राइटेरिया चेंज हो रहा है, मार्केट चेंज हो रही है, कंपटीशन चेंज हो रहा है, अपनी स्किल्स को अपग्रेड करिए। जो सर्विसेज वाले हैं, ट्रेनिंग सेंटर वाले हैं, यू आर वन ऑफ देम, ठीक है। ओपन सर्विसेज, नेवर एग्जैक्टली। इश्तियाक भाई, एक क्वार्टरली गोल बनाए, ज्यादा नहीं गोल बनाए, एक क्वार्टरली गोल बनाए, उस क्वार्टर में एक अचीवमेंट कर ले, एक साल बाद 4 अचीवमेंट हो जाएंगी। वेरी सिंपल। सो अपग्रेड योरसेल्फ, इधर हेल्थ है, सेफ्टी है, इन्वायरमेंटल है, सोसाइटी है, ग्रुप मैनेजमेंट है, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट है, लीडर है, या जो भी है। अली भाई, इवन सर्टिफिकेशन बॉडीज, यू नो, दे वर यूजिंग मी एज एन ऑडिटर, लेकिन मैंने फिर भी लीड ऑडिटिंग कोर्सेज, हालांकि मैं लीड ऑडिटिंग को भी पढ़ा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैंने अपग्रेड खुद को भी किया है, क्योंकि दिस इज हाउ यू नीड टू मूव। ये नहीं कि खाली आपने एक्सपीरियंस लिया हुआ है लेकिन एविडेंस नहीं है आपके पास। आई टोटली मिसाल एक उसकी मैं छोटी सी मिसाल देके बंद करता हूँ। हमने 3310 से शुरू किया था, याद होगा आपको, नोकिया 3310। जी बिल्कुल। अभी सिम अभी भी उस फोन में चलती है, बट हु वांट टू प्रेफर? सबको कैमरे वाला फोन चाहिए। एब्सोल्युटली राइट। Simple. So thank you very much, Ali bhai. Salamat rahe, and thank you very much for your precious time. I'm really grateful because it's a family time, and out of family time, apology to your kid, your diamond, and your wife as well, because I'm really grateful to them also. Thank you very much, Ali bhai. Nice to be here. Thank you very much. Thank you. You are truly pride of Pakistan. Thank you very much. Okay जी, बेस्ट इंटरनेशनल की तरफ से सबको इस नेक तमन्नाओं के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे, और हम सबको रियलिटी में
कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट करने की हिम्मत दे, ताकि अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान को पूरी दुनिया में एक यूनिकनेस और जो हकीकी कामयाबी है वो अल्लाह की रहमत से मिले। खुश रहें, आबाद रहें, और किसी का अच्छा नहीं सोच सकते तो बुरा भी ना सोचें, अगर किसी को मोटिवेट नहीं कर सकते तो डीमोटिवेट भी ना करें। ट्राई योर लेवल बेस्ट टू कीप योर पॉजिटिव एनर्जी, और यही अल्लाह को भी पसंद है, जो कि मैं अक्सर बात कह रहा होता हूँ कि अल्लाह ताला उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। तो अल्लाह को ज़रूर हर काम में याद रखें, एंड देन सी इंशाल्लाह कि अल्लाह ताला किस तरह रास्ते खोलता है, क्योंकि उसी के हाथ में कौन फायकून तो वही ज़ात है, राइट, कि वो खुद ही चाबी घुमा लेगा किसको आपके काम लगाना है। जैसे मुझे भी तो इस काम लगा दिया ना, आई नेवर थॉट कि मैं इतना लाइव आऊँगा, इस तरह आप सबसे डिस्कस करूँगा, आई नेवर एवर थॉट माशाल्लाह। बट लेकिन अल्लाह ने आपसे काम लेने होते हैं, यू हैव टू डू इट, यू हैव नो अदर चॉइस, you know. And thank you very much for all the guys who are motivating and giving some energy to me, you know, to keep this momentum alive inshallah. And I'll try my level best ke best international apni contribution jari rakhe, not only for the public sector, even for the private sector, as well as the individuals, including schools, universities, and you know, we have certain plans inshallah. And दुआ में याद रखिएगा जी। Thank you very much. Allah Hafiz. Pakistan Zindabad.